Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is the 7th part of our series, that is MCQs on static GK, and in this class we are dealing with some polity questions. So without any further delay, let's begin with our session. Question number 1 is provisions concerning the suspension of fundamental rights during emergency have been taken from which country's constitution. इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, उनकी जो सस्पेंशन होती है जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होती हैं, तो वो चीज़ें वो चीज़ हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूएसए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ आयरलैंड. Right answer to this question is option number B, that is Germany. The points which you have to remember regarding this question is there is a separate chapter of fundamental rights. हमें पता है कि fundamental rights are involved in part 3 of the constitution from article 12 to article 35. These fundamental rights are justiciable in nature. So moving on to our next question, question number 2. Nomination of members to Rajya Sabha by the President has been taken from which of the following countries' constitution? हम लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, वो चीज़ हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ आयरलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ साउथ अफ्रीका. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आयरलैंड. Friends, there are total 12 members which are nominated by the President to Rajya Sabha. Total 12 members which President nominate to Rajya Sabha, and these 12 members are those जो कि मतलब अपनी contribution करते हैं in the field of art, literature, science and social science. So this was all about question number 2. Moving on to our next question. Emergency provisions present in the Indian Constitution have been taken from which of the following sources? इसमें बोल रहे हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 352 टू 360 ऑफ द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये चीज़ें हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कनाडा. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. फ्रेंड्स, ऑल्सो रिमेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It is also known as the blueprint of the Indian Constitution, and there are total 3 kinds of emergency which are mentioned in the Indian Constitution. First, under Article 352 relates to the national emergency, जिसमें President national emergency घोषित करता है. अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि किसी भी स्टेट में लगता है. एंड अंडर आर्टिकल 360 देयर इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी. These emergencies are provided under the Part 18 of the Constitution. Part 18 of the Constitution from Article 352 to 360.
So this was all about our question number 3. Moving on to our next question, question number 4. The ideals of justice, that is social, economic, political, present in the Indian constitution are taken from which source? हमें पता है कि हमारे प्रियम्बल में जस्टिस इज यूज्ड इन द कीवर्ड, वो चीज़ हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? ऑप्शन नंबर ए इज सोवियत यूनियन, ऑप्शन नंबर बी इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज Japanese constitution, and option number D is Australian constitution. Right answer to this question is option number A, that is Soviet constitution. ये चीज़ हमने रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत रशियन रेवोल्यूशन 1917 से ली है. एंड सोशल जस्टिस का मीनिंग होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड सो ऑन. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि वेदर द पर्सन इज़ रिच और पुअर, कि चाहे इंसान अमीर है चाहे इंसान गरीब है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. पॉलिटिकल जस्टिस होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, कि है ना इंसान के पास द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द इक्वल राइट ओवर द ऑफिसेज, ऑल द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सबका सेम अधिकार है गवर्नमेंट के ऑफिसेज के ऊपर. So this was all about our question number 4. Moving on to our next question. Procedure for the amendment of constitution is taken from which source? बोल रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, ठीक है, वो हमने किस सोर्स से लिया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूएसए, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ साउथ अफ्रीका. Right answer to this question is option number D, that is South Africa. We know that amendment of the constitution is done under article 368 of the constitution, article 368 of the constitution, which is constituted under part 20 of the constitution. और जो हमारी the 24th constitutional amendment act, 24th Constitutional Amendment Act made it obligatory on the president to give his assent on constitutional bill. मतलब जो 24th Constitutional Amendment Act था ना of 1971, इसने ऑब्लिगेटरी कर दिया था, मतलब ज़रूरी कर दिया था कि प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कि जो भी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा, असेंट प्रेसिडेंट को उसके ऊपर असेंट देना ही पड़ेगा. ही कैन नॉट यूज हिज वीटो पावर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? द ऑफिस विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब हमने लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रांस, option number C is Britain, and option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is USA. Friends, वैसे तो USA के वाइस प्रेसिडेंट में और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, सो आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर आप लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, द आर्टिकल विच रिलेट्स टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर्टिकल नंबर 63, एंड हिज ऑफिस इज रैंक्ड सेकेंड आफ्टर प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑफ इन द इंडियन स्टेट. पहले नंबर पे किसका ऑफिस आता है? प्रेसिडेंट का. और सेकेंड नंबर पे किसका आता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ideals of liberty, equality and fraternity are taken from which source? Option number A is Russia, option number B is Japan, option number C is France, and option number D is Britain. Right answer to this question is option number C, that is France. French Revolution
from year 1789 to 1799. So our next question is, bicameralism legislature is taken from which country's constitution? जो हमारे ये लोअर हाउस और अपर हाउस है, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा, जो ये वाला कल्चर है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रांस. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रिटेन. फ्रेंड्स, जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर था इन इंडिया, इट वॉज इंट्रोड्यूस before the independence by the British government, by the Government of India Act 1919. Government of India Act 1919. मतलब इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था? 1919. Government of India Act was also known as Government of India Act 1919, also known as Montague-Chelmsford reforms. Okay, so our next question is, which of the following acts abolished diarchy in the provinces? Option number A is Indian Councils Act of 1862. Option number B is Government of India Act 1919. Option number C is Government of India Act 1935 and option number D is Indian Independence Act of 1947. Right answer to this question is option number C, that is Government of India Act 1935. डायआर्की में दो चीज़ें थी. डायआर्की में क्या था? मतलब इट वॉज अ डुअल सिस्टम. इसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड by the British government. Okay, डायआर्की की इंट्रोडक्शन कब हुई थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. जब हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ था तभी हमारी डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई थी इन द प्रोविंसेस एट द स्टेट लेवल. ओके, और इसको अबॉलिश किया था कौन से एक्ट ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बारी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. ऑप्शन नंबर ए इज़ एन गोपाल स्वामी अयनगर. ऑप्शन नंबर बी इज़ सैयद मोहम्मद सदुल्ला. ऑप्शन नंबर सी इज़ गोपीनाथ बारदोलोई एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टी कृष्ण रामाचारी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गोपीनाथ. फ्रेंड्स, आप लोग और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे अदर देन एन गोपाल स्वामी, सैयद मोहम्मद एंड टी कृष्ण रामाचारी, देयर आर 4 अदर members also which were included in the drafting committee. Naming first one was the Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. He was also the chairman of the drafting committee. Next one is Aladi Krishnaswamy Iyer. Aladi Krishnaswamy Iyer. Third one is Dr. K.M. Munshi. And fourth one is N. Madhav Rao. मैं आप लोगों को एक बारी दोबारा से इन सब के नेम्स रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. ओके, सेकेंड वन इज़ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. थर्ड वन इज़ डॉक्टर K.M. मुंशी. फोर्थ वन इज़ N. माधव राव. फिफ्थ वन इज़ N. गोपाल स्वामी अय्यर. सिक्स्थ वन इज़ सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड सेवेंथ one is T.T. Krishna Ramachari. So this was the last question of our PPT.
होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड फ्रेंड्स, फनकार सर अनअकैडमी लाइव क्लासेस ले रहे हैं। उनकी क्लासेस 4:30 PM एंड 9:30 PM होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। आप लोग वहाँ पे उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सर पंजाब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।